everyone, welcome to my channel K the Occupational Therapist. My name is Kirti. I hope you liked my last video which was about anxiety and stress in students of class 12th. Today's video would be a bit similar, but the population that I'm going to target is the adults or the middle-aged people जो शायद अपने business में losses face कर रहे हैं, who might have lost their jobs recently या जिनका promotion delay हो गया है due to this lockdown. So anxiety and stress are two different things, जिसका difference मैंने last video में भी बताया था. And also I'll just sum it up quickly. Anxiety is a long term condition जो बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है, जिसका known cause हमें नहीं पता. On the other hand, stress is a short term condition जिसका cause according to our surroundings change होता है. इसका cause हमारे stress factors हमेशा change होंगे जैसे जैसे हमारी situations change होंगी. So, anxiety and stress occur to a person when the person is either living in his past or thinking about the future. Anxiety और stress तभी brain में hit करता है जब कोई भी इंसान या तो अपने past के बारे में worried हो, अपने past incidents के बारे में continuously सोच रहा हो, guilty feel कर रहा हो maybe, या फिर वो अपने future को लेकर tensed हो कि शायद कल उसके पास प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट होगा या नहीं होगा, या कुछ और रीजन भी हो सकता है. सो द मेन थिंग दैट वी शुड डू इज हम लोगों को अपने प्रेजेंट के बारे में सोचना है. द स्टेज वेयर वी आर लिविंग राइट नाउ इज आवर प्रेजेंट. सो वी हैव टू जस्ट बी इन आवर प्रेजेंट. हमें जोन आउट नहीं होना है, हमें अपने पास्ट के बारे में भी नहीं सोचना है, ना ही हमें फ्यूचर के बारे में टेंशन लेनी है. वी जस्ट हैव टू लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट अपने प्रेजेंट में. अगर हम पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचेंगे तो एंजाइटी और स्ट्रेस वहीं से हमारा स्टार्ट होने लगता है. प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई नो एवरीवन प्लान्स फॉर देयर फ्यूचर, बट प्लानिंग में और उसके बारे में ज्यादा स्ट्रेस लेना, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. सो यू हैव टू प्लान अबाउट योर फ्यूचर, बट यू डोंट हैव टू गेट वरीड अबाउट इट. So in today's video, I will be discussing about a few techniques that you can follow to relieve your anxiety and stress. There are a different type of breathing techniques जो आपको help करेंगी to relieve your anxiety and stress. So to begin with, the first technique is balloon breathing. Balloon breathing एक ऐसी breathing technique है जिसमें आपको air को inhale करना है from nose and you have to exhale out the air from your mouth. Okay, the first step would be inhale the air from your nose and exhale out from your mouth. So let's do it together. You have to inhale the air from your nose. So I inhaled the air from my nose and exhaled out from my mouth. This is known as balloon breathing. So initially when you have just started doing this balloon breathing technique, what you can do is you can give it a repetitions of 5 times, and as you have a hold of it, जब आपको practice हो जाए, when you know that you are doing it correctly, you can increase the repetitions. You can do this technique twice a day, maybe morning or evening, or whatever time you feel comfortable with. So the next breathing technique is square breathing. As you know that square has 4 sides, so this technique considers 4 steps. Step 1 is you have to breathe in the air for 4 seconds. Step 2 is you have to hold on the inhaled air for 4 seconds again. The third step is you have to exhale out for 4 seconds. And the last step is you have to hold the exhaled air for 4 seconds. It is a cycle of 4 steps and each step is of 4 seconds. First step is to inhale the air. Second step is hold on the inhaled air. Third step is exhale out the air, and the fourth step is hold on the exhaled air. So let's do this together. So I hope you were able to do. So these are the 2 breathing techniques that would help you out to get rid of the stress factor that you are facing, and also it will help you to आपका ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्स करने में, आपके लंग्स को, आपका हार्ट को थोड़ा सा रिलैक्स स्टेट में लेकर आने के लिए these 2 techniques are very helpful.
Okay, so the next thing that you can follow is a sleep hygiene. Sleep hygiene is very important. By sleep hygiene I mean आपका sleeping pattern, आपके sleep cycle, आपके sleeping hours कैसे vary करते हैं और कैसे होने चाहिए. So our brain maintains a sleep wake cycle. Each cycle is of 90 minutes. हमारा brain एक sleep wake cycle maintain करता है और हर cycle is of 90 minutes which is 1.5 hour. So we should make sure कि जब हम लोग सो रहे हैं तो हमारा वो जो साइकिल है वो कंप्लीट होना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग आफ्टरनून नैप्स लेते हैं, what people do is half an hour, 45 minutes इतना सो पाते हैं according to our busy schedules. But now क्योंकि हम लॉक्ड हैं अपने घरों के अंदर, so we should make sure कि एटलीस्ट जो हमारे आफ्टरनून नैप्स हैं they should be of 90 minutes. So whenever you set your alarms for your afternoon naps, it should be after 1.5 hour. 1.5 hour is 90 minutes. आपका 90 minutes सोने से ब्रेन जो है वो बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अ ह्यूमन ब्रेन 90 minutes is the optimum time of sleeping and this completes your one cycle. So whenever we sleep at night also हमें ये make sure करना चाहिए, जैसे नॉर्मली बोला जाता है we should take 8 to 10 hours of sleep. लॉकडाउन है, आई थिंक सबके लिए मैनेजेबल है, ये आप टाइम दे सकते हो. यू हैव टू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ स्लीप to get rid of all the stress factors that you are having. अगर एक अच्छी स्लीप आप ले रहे हो, if you are having deep sleeps, तो आपको बहुत convenient और बहुत relaxed feel होता है the next day. Next day would be very freshened up. आप बहुत अच्छे से अपने सारे activities perform कर पाओगे. The next thing is you should maintain an activity planner. आप अपने सारे activities को अगर schedule कर लेते हो, मैंने last video में भी इसके बारे में बताया था. एक्टिविटी शेड्यूल करने से यू आर एबल टू प्रायोरिटाइज योर वर्क. आपके जो जो डेली एक्टिविटीज है, जो डेली रूटीन है, आप उनको प्रायोरिटाइज कर लोगे. आपका एक एक्टिविटी शेड्यूल अगर बना रहेगा, सो योर ब्रेन वुड डेवलप अ हैबिट. एक हैबिट डेवलप होने के लिए यू नीड 21 डेज. तो 21 डेज में आप अगर अपनी एक हैबिट डेवलप कर लो दैट यू आर मेकिंग अ टू डू लिस्ट, चेकलिस्ट बना रहे हो, या आप ये प्रायोरिटाइज करो कि आपको टॉप एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, सबसे फर्स्ट लिस्ट में क्या होना चाहिए और सबसे लास्ट में क्या होना चाहिए. सो दैट वुड मेक योर वर्क वेरी इजी एंड कन्वीनियंट ऑल्सो. सो दिस इज वन थिंग. द अदर इज यू कैन स्टार्ट रीडिंग मेनी होली बुक्स, नॉवेल्स और एनी बुक ऑफ योर इंटरेस्ट. बुक्स रीड करने से आपका ब्रेन जो है वो पीस स्टेट में चला जाता है, पीसफुल स्टेट में जाता है. So you can make a habit of reading books before going to bed. Usually लोग बोलते हैं कि हम रात को फोन यूज करते हैं तो हमें उससे नींद आती है. They might be watching any series YouTube पे या Instagram या Facebook and there are lots of things on internet. So instead of using phones at night, you have to develop a habit of reading books. Books read करोगे आपको नींद भी जल्दी आएगी और बहुत डीप स्लीप में आप जा सकते हो. आपकी रात को नींद नहीं खुलेगी, क्योंकि बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी रात को नींद खुल जाती है. सो यू कैन डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स. इट कैन बी एनी बुक ऑफ योर इंटरेस्ट, चाहे वो होली बुक हो या कोई नॉवल हो. द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट अराइजेस फ्रॉम एंजाइटी एंड स्ट्रेस इज एंगर. अगर कोई भी इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है या इरिटेटेड है किसी चीज की वजह से, तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि शायद उसका जो एंगर है, उसका जो गुस्सा है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. सो यू हैव टू मैनेज योर एंगर एज वेल. अपना एंगर मैनेज करने के लिए बहुत सिंपल सी टेक्निक्स हैं जो हम डेली लाइफ में कर सकते हैं. सबसे पहली चीज ये है, जब भी आपको लगे कि आपको गुस्सा आ रहा है, यू फील लाइक हिटिंग समवन, या आपको लगे कि बस मुझे यहाँ से दूर जाना है, सो यू कैन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. आप मिरर के सामने जाके खड़े हो जाओ एंड जस्ट काउंट बैकवर्ड्स फ्रॉम 10 to 1. आप बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करो फ्रॉम 10 to 1. द काउंटिंग शुड बी वेरी स्लो. बहुत जल्दी जल्दी काउंट नहीं करना है, यू हैव टू बी स्लो. आप बहुत पीस में, बहुत आराम से काउंट करो. 10, 9, 8 ऐसे करके आप बैकवर्ड काउंटिंग करो स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर. अगर आप मिरर के सामने खड़े रहकर ये करोगे, यू विल बी एबल टू सी कि आपके फेस पे कितना एंगर था और उसको कंट्रोल करने में आपको बहुत इजी हो जाएगा. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने एंगर पे कंट्रोल करो. नेक्स्ट टेक्निक टू कंट्रोल योर एंगर इज यू कैन डू इज, आपके घर में अगर कोई भी प्लास्टिक बॉटल्स हो वेस्ट, अगर बॉटल्स नहीं है यू कैन यूज वेस्ट न्यूज़पेपर्स ऑल्सो.
पुराने न्यूज़पेपर्स आप यूज करो। और जब भी आपको लगे कि यू आर फीलिंग एंग्री, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेयर ऑफ द न्यूज़पेपर्स। आप अपने न्यूज़पेपर्स को टेयर ऑफ करो, आपका सारा जो भी एंगर होता है वो इससे बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। अगर बॉटल्स हैं, यू कैन क्रश ऑल दोज प्लास्टिक बॉटल्स एंड थ्रो इट एंड मेक श्योर आप किसी को हिट नहीं कर रहे हो। उसके बाद यू जस्ट हैव टू, व्हाट यू हैव टू डू इज आप बॉटल्स को क्रश कर सकते हो या फिर आप अपने न्यूज़पेपर्स को टेयर करना स्टार्ट कर दो। सो दीज आर द 2 टेक्निक्स टू कंट्रोल योर एंगर। So these were the few things that you can keep in mind. This way you would be able to keep a control on your anxiety, on your stress. I hope you liked the video. Thank you for watching.